हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ एग्रीकल्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले, और आप बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। Okay, so let's understand what is agriculture. Starting from the basic question. The science of the practice of farming and rearing of animals can be defined as agriculture. So, agriculture includes dairy, fruit cultivation, forestry, harvesting, harvesting of honey, and many more things. Now, agriculture is very important to our country, that we can survive, that we cannot survive without it. So basically agriculture is a science of practicing farming and rearing of animals. तो भारत में सबसे प्राइम ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि आज भी रूरल एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा जो लोग जो काम करते हैं वो एग्रीकल्चर ही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ओनली. Agriculture is one of the most important economic activities in the world. It's one of the most important economic activities in the world. Okay, so now let's start with the various kinds of economic activities that happen. So according to that, it is divided or it is broadly grouped into three types, which is primary, secondary and tertiary. So there is primary activities, there is secondary activities, and there is tertiary activities. So let's understand one by one what is primary activity, what is secondary activity, and what is tertiary activities. So let's understand line by line what is primary activity, secondary activity, and tertiary activity. So let's start with primary activity. Primary activity क्या है? So primary activity is basically the product which we get directly from the nature. So those product which is extracted or we get directly from the nature is known as primary activities. So in primary activities there is your hunting, food gathering, even agriculture, fishing, forestry. These all come under primary activities. Now let's understand what is secondary activity. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो हम समझ गए कि जो हमें जो वो प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलते हैं. तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी मीन्स those things which we need to process primary activities. So we need secondary products to develop or to process the primary activities. So these are called secondary activities. So secondary activities में आपकी manufacturing आती है basically. Okay, and now let's understand what is tertiary activities. So tertiary activities is basically the various services like trade, transport, banking, advertisement, which is just like a support system for primary and secondary activities. So just let's study it line by line through paragraph. The primary activities include extraction of raw materials from the earth's surface. वही मैंने जो आपको बताया, directly which we get from the earth's surface, which is the raw material. The main primary activities are hunting, food gathering, pastoralism, fishing, forestry, hunting and agriculture. So these are all things which come under primary activities. Now let's understand what is secondary activity. Now secondary activities include the process of raw material and converting into finished goods. So वही to process the primary activities and convert it into the finished goods, जो raw materials है उसको process करके हम जब product बनाते हैं उसी को वो जिस प्रोसेस से होता है उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं. जैसे मैन्युफैक्चरिंग, द मेन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर इंडस्ट्रीज एज आई सेड, सच एज मेकिंग ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड वीविंग ऑफ द क्लॉथ. So these all come under the secondary
Now, what is tertiary activity? Now, tertiary activity, it includes all types of services which support the primary and secondary activities. So I said before also, ये जो services हम provide करते हैं to support primary and secondary activities, that come under the tertiary activity. The main tertiary activities are, transport, trades, education, banking, insurance, and advertising, right? So these are the various kinds of economic activities under this. Now, when we see in global sector, world has 50% of agriculture sector, but when we talk about India, there is about 2/3 of the population which is engaged in agriculture. तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जिस काम में जो काम करते हैं वो आपका एग्रीकल्चर ही होता है, खेती किसानी ही होती है, which is 2/3 means approx 75%. So it is written here, at present, though we are living in the industrial age, still more than half of the world population is directly or indirectly engaged in the agriculture, right? About 75% of India's total population is still dependent on the agriculture, right? So that's why we call agriculture as a global sector, okay? So let's now understand how agriculture word is being derived. So now agriculture is derived from the word agar, which means soil, and culture, which means cultivation. So it is written here. Latin word agar means soil and culture means cultivation, right? Thus, agriculture is defined as the art and science of cultivating the soil and raising the crops of livestock. Okay, so a part of agriculture we have sericulture also, which is cultivation of silkworms, pisciculture, which is cultivation of fishes, viticulture, which is cultivation of grapes, and horticulture, which is cultivation of fruits. So these are types of cultivation which come under this. So now there are factors which influence the agriculture. So now let's study what are the factors which influence the agriculture. So primarily there are three conditions which is very important for agriculture to develop, which is a land or relief, climate, and the soil. So these are the three things which is very important for cultivating agriculture or for having agriculture to development. So if we talk about climate is divided into two parts, that is temperature and rainfall. So for example, some crops need humidity और कुछ ऐसी crops होती हैं which are frost free, like cotton. So cotton cultivation के लिए अलग temperature चाहिए होता है. कुछ क्रॉप्स होती है जिसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है. सो टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो बेसिकली क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर agriculture, for growing of different crops, right? And now soil. So soil also plays a very important role in agriculture. So different types of soil, which means different type of agriculture products. So we have black soil, हमारे पास black soil होता है, we have red soil, alluvial soil, loamy soil. So these are the soil which help to have different kinds of crop or different kinds of agriculture. And then comes the relief or the land. So land is the very important thing for agriculture, right? So land is the basically a thing where grow the crops. So let's study one by one about it through paragraphs. So first thing which comes is relief or land, right? So the first point which comes, what is arable land? आप लोगों ने सुना है what is arable land? So arable land is basically land where we grow the crop.
condition required to process the agriculture crops, right? The land where we grow the crops. So land on which crops are grown is known as arable land. The lowlands such as river basins, plains, deltas, floodplains are more suitable for the growth and development of agriculture than in the highlands. So ये जो एरियाज़ है, जो lowlands होती है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है एग्रीकल्चर के लिए देन हाईलैंड्स. In the lowlands, dense population not only provides adequate and cheap labor, but also a ready market for farm products. In hilly areas, soil erosion is rapid. Moreover, farm machinery cannot be used and the means of transport is limited. तो जो ये आपकी lowlands होती है, वहाँ पर जो होता है आपको लेबर भी अच्छा मिल जाता है और वहाँ की जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट रहता है दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. हाइट पर जाएंगे तो आप तो वहाँ पर डर रहता है सॉइल इरोजन का, क्योंकि हवा अगर तेज़ चलती है तो सॉइल को वो साथ उड़ा के ले जाती है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना इज़ नॉट गुड. सो बेसिकली जो एग्रीकल्चर होता है वो लोलैंड एरियाज पर ही होता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन. सो अभी मैंने आपको बताया था क्लाइमेटिक कंडीशंस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ क्लाइमेट एंड सॉइल. क्लाइमेट में भी आपका टेम्परेचर और रेनफॉल होता है. कुछ जगह आपको ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है, कुछ जगह आपको ठंडा वेदर चाहिए होता है. सो इसके हिसाब से टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से भी एग्रीकल्चर डिफर करता है. सो लेट्स स्टडी. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स फेवर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. Thus, cultivation is possible almost throughout the year in the equatorial and tropical regions. So आप लोगों ने सोचा होगा ट्रॉपिकल आइलैंड्स पे सबसे ज़्यादा ग्रीनरी क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा दीज आर द प्लेस जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है. तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है. इट्स फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, राइट. In the winter season and in the cold region, the temperature is too low for the plant growth. जब टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाती है. तो द मॉइस्चर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर कल्टिवेशन. तो कल्टिवेशन के लिए प्लांट्स में मॉइस्चर होना चाहिए. और मॉइस्चर कैसे मिलेगा, जब आपका जो वेदर होगा वो ह्यूमिड होगा. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. More moisture is needed in the tropical areas than in the temperate areas, even for the same crop. It is difficult to grow crops in dry areas without irrigation. तो आप लोगों ने देखा होगा अब राजस्थान में आपको ज़्यादा प्लांट्स नहीं दिखते हैं, वो ज़्यादा नहीं दिखते. क्यों? क्योंकि वो ड्राई एरिया होता है, वहाँ पर मॉइस्चर कम होता है. ठीक है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट केरला साइड, तो केरला हॉट एंड ह्यूमिड एरिया है, राइट. वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, राइट. राजस्थान भी गर्म है लेकिन वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता, वो ड्राई एरिया है. मतलब वहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है. वेदर इन केरला और इन डाउन साउथ साइड ह्यूमिड रीजन बहुत होता है, हॉट भी होता है, ह्यूमिड भी होता है. इसलिए वहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होती है और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ सॉइल. ओके, मैंने आपको बताया था सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के लिए. जितने टाइप के सॉइल होंगे उतने टाइप के आपको डिफरेंट एग्रीकल्चर और या क्रॉप्स आपको वहाँ मिलेंगे. सो द सॉइल इज़ नॉट ओनली सपोर्ट्स द प्लांट बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मीडियम टू सप्लाई मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स, राइट. सिर्फ क्रॉप्स के लिए नहीं हेल्प करता है, मतलब मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को. Porous soil is soft and can be tilled easily. Clay soil has high moisture and retentive capacity. Alluvial soil is more fertile. The soil which has a variety of chemicals in it is suitable for the production of variety of crops. However, the fertility of the soil reduces with continuous cultivation. Thus, it is necessary to maintain the fertility of soil. तो मैंने आपको बताया ना जितने टाइप के आपके जो सॉइल होंगे उसमें कुछ अलग अलग खूबियाँ होंगी और उन सॉइल में कुछ अलग टाइप के क्रॉप्स ही ग्रो कर सकते हैं. तो जितने टाइप के सॉइल होंगे वो वहाँ पर उतनी वैरायटी के क्रॉप्स ग्रो करेंगे. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट.
अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज़ इनपुट एंड आउटपुट, राइट. सो आउटपुट हमारा क्या होता है, जो हमें अच्छी क्रॉप मिले, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप वी गेट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसी हुई, आपको जो इस बार क्रॉप मिली है वो कैसी मिली है, फसल कैसी है, दैट इज़ योर आउटपुट. और इनपुट इसमें क्या लगता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट इज़ योर मशीनरी, टेक्नोलॉजी, आप कैसे सीड्स डाल रहे हो, कौन कौन से केमिकल्स आपने यूज़ किए हैं, क्या क्या मेथड यूज़ किया है आपने उस अच्छी फसल को पाने के, लाइक प्लॉइंग, सोइंग, स्प्रे एक्सेट्रा. तो अच्छी फसल मतलब आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आपने इनपुट अच्छा किया होगा, अच्छे से आपने अच्छी मशीनरी यूज़ की होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, अच्छा सीड्स यूज़ किया होगा, अच्छे अच्छे केमिकल्स जो फसल के लिए अच्छे हैं वो यूज़ किए होंगे, डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज़ किए होंगे जो क्रॉप्स के लिए अच्छे होंगे. सो दीज आर द इनपुट्स. सो अब इनपुट भी दो टाइप के होते हैं. पहला है आपका फिज़िकल इनपुट एंड अदर वन इज़ ह्यूमन इनपुट. सो फिज़िकल इनपुट आपका मतलब जैसे कि रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, बेसिकली नेचुरल लैंड पैटर्न हो गया, कितनी सनशाइन मिल रही है, ये सब हो गया. और ह्यूमन इनपुट मतलब आपका लेबर कितना लगा, लोगों ने कौन सी मशीनरी यूज़ की, आपने कैसे केमिकल्स यूज़ किए हैं अपने फसल के लिए, और कैसे उसको प्रिजर्व करके रखा है. सो ये इनपुट्स होते हैं. आउटपुट आपकी तभी अच्छी मिलती है जब आपका इनपुट अच्छा हो, राइट. सो लेट्स स्टडी इन पैराग्राफ में पढ़ के समझते हैं कि क्या है. द इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट्स, एडिक्वेट एंड चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, मार्केट्स एंड लोन्स फॉर द फार्मर. The main farm inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. ये मैंने आपको बताया था कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड द लेबर ये इनपुट होता है, तभी आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा. अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर द सिस्टम ऑफ लैंड टेंडर, land use, availability of farm machinery, government policies and the labor of scientific and technological developments. So these were the 4 points which are important for the factors of cultivating agriculture, right. Now we'll study about the types of farming. तो फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है, राइट. तो अगर बेसिकली देखा जाए तो फार्मिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज़ subsistence farming, number 1, right, and number 2 is commercial farming. This, okay. So farming is divided into 2 types, which is subsistence farming and second is commercial farming. Now let's understand कि subsistence farming क्या होती है और commercial farming क्या होती है. सो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है विच इज़ डन फॉर द हाउस होल्ड पर्पज़, मतलब अपने काम के लिए जो खेती करी जाती है वो, मतलब अपनी छोटी फैमिली के लिए, राइट. सो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है यहाँ पर यहाँ पर लेस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है. सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ दिस. अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो भी 2 टाइप में डिवाइडेड है, विच इज़ योर इंटेंसिव फार्मिंग, सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नाउ व्हाट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ farming which is done in a small place or in a small area, जहाँ पर ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट मैसिव अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड. तो एक छोटे एरिया में, सपोज़ एक छोटे से प्लॉट या छोटे से हेक्टेयर में जो फार्मिंग होती है उससे हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही प्राइमरीली यूज़ कर रहे हैं, प्रिमिटिव यूज़ कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऐसी फार्मिंग यूजुअली आपकी व्हीट कल्टिवेशन के लिए होती है, राइस कल्टिवेशन के लिए होती है एंड मेज़ कल्टिवेशन के लिए होती है. अब इंटेंसिव कल्टिवेशन के बाद आता है आपका प्रिमिटिव कल्टिवेशन, राइट. सो प्रिमिटिव कल्टिवेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, विच इज़ shifting cultivation and nomadic cultivation. So we'll understand one by one what is shifting cultivation and what is nomadic cultivation.
सो बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, वो कल्टीवेशन जो एक से ज़्यादा प्लेसेस में हो उससे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ किसी एक एरिया में हमने आपका मान लो व्हीट ग्रो किया या राइस ग्रो किया, ठीक है। अब वहाँ पर जब वो ग्रो हो गया, वहाँ से हमने उसे उठा लिया, राइट, हमने क्रॉप्स निकाल लिए। तो उसके बाद जब वो जो सॉइल होती है जहाँ पर अभी हमने एग्रीकल्चर किया, वो जब अपनी फर्टिलिटी खो देती है, तो उस एरिया को हम लोग वहाँ से हम लोग शिफ्ट करके दूसरे एरिया में आ जाते हैं, दूसरे प्लॉट में आ जाते हैं और वहाँ मतलब कि एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ हम लोग क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो इसी को हम लोग स्लैश और बर्न कल्टीवेशन कहते हैं, क्योंकि हम उस एरिया जब चला जाता है तो वहाँ पर जो भी आपके जो लैंड इज़ क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग ऑफ द बुशेस एंड ट्रीज, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज स्लैश और बर्नड एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट इज़ नोमैडिक एग्रीकल्चर? सो नोमैडिक नाम से ही समझ में आ रहा है, नोमैडिक मतलब जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है। सो नोमैड्स आर जिनका कोई परमानेंट घर ना हो, राइट। सो ये लोग जो होते हैं वो शीप, कैमल, गोट का कल्टीवेशन करते हैं। सो इन एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो जो उन जैसे मिल्क मिलता है तो उसकी वो लोग सप्लाई करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड नोमैडिक एग्रीकल्चर। सो अब हम इसको डीप स्टडी करते हैं पैराग्राफ पढ़ के। Now what is first we'll study about shifting cultivation. Shifting cultivation is mainly practices in forest area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and parts of Northeast Asia. The land is cleared by cutting and burning of bushes and trees. The farming methods are primitive. Crops like yam, cassava, maize, potatoes are mostly grown. After about 2 or 3 years, the soil loses its fertility and becomes unproductive, right? Then the farmers shift to the another place of the forest. This method is also called slash and burn agriculture. Shifting cultivation, though destructive, is still practiced in many parts of the world. So ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एरिया को जला देंगे तो उसको फर्टिलिटी गेन करने में बहुत साल लग जाते हैं, राइट। It is known by different local names in different parts of the world. It is called jhoom in Northeast Asia, ladang in Malay Peninsula, chenging in Philippines, milpa in Central America, konuk in Venezuela, roca in Brazil and masol in the Congo basin of the Africa. तो ये अलग अलग नाम है, सेम प्रैक्टिस यही होता है लेकिन इसको नाम अलग अलग जगह ये दिया गया, राइट। Now let's study about the nomadic herding, right. Nomadic are the tribes who move from one place to other place in search of means of subsistence. People who move in search of pastures for their domesticated animals are known as nomadic herders. Their seasonal movement with livestock uphill during summer and downhill during winter in search of pastures is called transhumance. Nomadic herding is mainly practiced in arid and semi-arid areas like Sahara and Africa. इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? इट्स राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर. These the animals reared sheep, goats, camels, yaks. These animals provide food as milk and meat. They also provide wool and hides which are used to make clothes and shelter. तो ये होते हैं नोमैडिक. जैसे मैंने आपको बताया था एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलता है वो उनका कल्टिवेशन करते हैं. सो दीज आर व्हाट कॉल्ड nomadic herders. Now let's study about the commercial farming. तो commercial farming मैंने आपको पहले ही बताया था, जो commercial use के लिए होता है, मतलब large scale में इसका production होता है. So commercial farming is also divided into 3 parts, which is extensive commercial farming, mixed commercial farming, and third one is plantation agriculture, right? नाउ हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट एक्सटेंसिव फार्मिंग, ठीक है. तो एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स सपोज लाइक व्हीट, मेज एट लार्ज स्केल. मतलब लार्ज स्केल में इसका कल्टिवेशन होता है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ह्यूज फार्म्स होते हैं, ह्यूज हेक्टर्स एंड हेक्टर्स ऑफ लैंड होता है. वहाँ पर जो कल्टिवेशन हो उसको हम लोग एक्सटेंसिव फार्मिंग कहते हैं.
यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए ऑब्वियसली जब बड़ी एरिया है, हेक्टर्स की लैंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर मशीन्स, ह्यूज मशीन्स भी चाहिए होंगी. दीज आर ऑटोनॉमिक एंड सेमी ऑटोनॉमिक. अब ये कौन कौन सी एरियाज़ में होता है? ये जो कल्टीवेशन होता है ये बेसिकली आपका USA, यूरोप यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर ही कमर्शियल फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है. सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एक्सटेंसिव फार्मिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? तो मिक्स्ड फार्मिंग मतलब वो एरिया जहाँ पर क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स भी ग्रो होते हैं फॉर ह्यूमंस. यहाँ पर फॉडर भी ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं एनिमल्स के लिए, और यहाँ पर लाइफ स्टॉक भी रखा जाता है. तो एक ही एरिया में तीनों चीज़ें हो जाएं, तीनों चीज़ों का कल्टीवेशन हो, उसको हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं. इन मिक्स्ड फार्मिंग लाइफ स्टॉक्स आर reared along with the crop farming. Fodder crops are cultivated with food crops, right? Cattle rearing for milk and meat is also important feature of the mixed farming. तो एक ही जगह हर चीज़ हो जाए, उसी को हम लोग मिक्स फार्मिंग कहते हैं. अब ये कहाँ कहाँ होता है? यूरोप, ईस्ट USA में होता है बेसिकली, और आपका USA, अर्जेंटीना, इन सब एरियाज़ में होता है. अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग यूजुअली होती है. नाउ थर्ड एंड द लास्ट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप. कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्रॉप का प्लांटेशन और ग्रोथ को हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं. तो ऐसी जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो करते हो, वहाँ पर आपको लार्ज कैपिटल लेबर भी चाहिए होता है, और ज़्यादा लेबर भी चाहिए होता है, और मशीन्स भी ज़्यादा चाहिए होती हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्लांटेशन एग्रीकल्चर. नाउ आफ्टर प्लांटेशन एग्रीकल्चर लास्ट पॉइंट विच कम्स इज़, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर में, विच इज़ डेयरी फार्मिंग. Now let's understand what is dairy farming. Dairy farming has been developed to meet the needs of the industrial cities. Its growth and development has its roots in Europe, where the climate is suitable for the natural pastures, right? Cattle are reared from milk near big cities to meet needs of people working in the factories. So basically ये अभी जो कैटल फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, ये ज़्यादा डेवलप हुआ है बाहर की कंट्रीज़ में, लाइक यूरोप, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है. डेयरी फार्म्स नीड अ लार्ज लेबर फोर्स ऑफ वर्क फॉर द कैटल, क्योंकि कैटल जो है उन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, तो लार्ज लेबर की ज़रूरत पड़ती है. At present, machines are widely used for milking, feeding and cleaning of the cattle. So ये machines important होती हैं milking के लिए, feeding के लिए and cleaning के लिए. Huge capital investments are needed. तो यहाँ पर capital की भी ज़्यादा investment होती है. तो these are what comes under dairy farming, right? So this is what we studied in this chapter. I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.